Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your New Year time. Happy New Year to all of you. Let us start this chapter. Chapter number is 12 and chapter name is Electricity and Circuit. Okay, Electricity and Circuit. Let us start this chapter. We will learn about electricity, electric current, what is inside a torch, electric conductors and insulators and the LED light emitting diode. ठीक है, let us start with electricity. Today electricity play a very vital roles in everybody's life. In fact, it is difficult to imagine our lives without electricity. We can realize it is most when there is a power cut. Electricity provide a light and heat. It runs your mother's mixer and grinder in the kitchen. It's move automobiles and trains. It is used to run pump which provide water to a farmer fields and so on. It is one of the efficient, pollution free and useful form of energy. It can be transformed into different kinds of energy by using a different device. ठीक है, अलग अलग हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करते हैं या फिर कोई डिवाइस यूज़ करते हैं जिससे वो जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एनर्जी का. फिर आते हैं इलेक्ट्रिक सेल पे. द फर्स्ट एवर सोर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज अ सेल मेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट नेम Alessandro Volt. The cell devised by him was called a voltaic cell आफ्टर हिज नेम. ठीक है, उनके नेम के ऊपर उन्होंने क्या रखा, जो सेल उन्होंने डिवाइस को इन्वेंट किया था उसका नाम वॉलेटिक सेल रखा गया. देयर वॉज सम प्रैक्टिकल difficulties in the work and handling of voltaic cells. The scientists then worked to get over the difficulties by improving the cell till they could design a dry cell. Today, we have a variety of cells, of which the most common one are dry cells, button cells, solar cells and store cells. ठीक है, these are the dry cells. ठीक है, और ये बटन सेल्स है, आपके सोलर सेल्स है कुछ. तो यही सब आपके वेराइटीज़ आ गए. इनसाइड द टॉर्च cells are widely used in alarm bell, wall clock, TV, AC remote control, wrist watch, transistors, radio, camera and many other electrical and electronic devices. Let us now study the outside and inside of the most common type of a dry cell. ठीक है, let us start. Activity 1. Take a used waste, जिसे बोलते हैं यूज आफ्टर यूज, जो सेल होता है वेस्ट हो चुका होता है, मतलब यूज हो चुका है. ऑब्जर्व केयरफुली द अपीयरेंस एंड द शेप ऑफ द सेल. नोट दैट इट्स टॉप हैज़ अ मेटेलिक कैप इन द सेंटर. ठीक है, आपको मेटेलिक कैप दिखेगा जो सेंटर में होगा. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाला टर्मिनल है. ठीक है, द मेटल डिस्क शेप बॉटम एंड ऑफ द सेल इज इट्स नेगेटिव टर्मिनल. और नीचे साइड क्या दिखेगा आपको, कि नेगेटिव उसका बेस दिखेगा. ठीक है, प्लेट दिखेगी. वेन एवर अ सेल इज टू बी पुट टू यूज, मेक श्योर दैट बोथ ऑफ इट्स टर्मिनल गेट इन प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस. ठीक है, प्रॉपर कॉन्टैक्ट मिलना चाहिए जिससे वो क्या हो, ये जो सेल होता है हमारा, ये पॉजिटिव हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. तो इसको अच्छे से एडजस्ट करके लगाते हैं जिससे पॉजिटिव नेगेटिव अच्छे से बैलेंस हो जाए डिवाइस में. नाउ केयरफुली ब्रेक ओपन द सेल. Note the kind of thing and material present inside it. The black substance present inside is the waste remaining of the chemical. ये waste remaining बचता है जो chemical का होता है. The thick black rod placed it in the center of the cell is the carbon rod, whose ends acted as a positive terminal. और ये जो ब्लैक कलर का होता है ये कार्बन टर्मिनल होता है, रॉड होती है जिससे हम पॉजिटिव टर्मिनल की जैसे वर्क करती है. द जिंक कंटेनर एक्ट एज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. और जिंक जो कंटेन करता है, कंटेनर होता है, उसमें क्या होता है, ये जिंक कंटेनर है जिसमें वो अमोनियम क्लोराइड होता है लिक्विड, जिससे वो चलता है. द सिलेंड्रिकल साइड्स ऑफ द सेल इज कवर्ड विद अ प्लास्टिक शीट. और इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगा दी जाती है. देखिए ये प्लास्टिक शीट लगी है ना इस पर. ठीक है, आफ्टर दैट आते हैं एक्टिविटी के बाद. For many devices, the amount of current provided by one cell is insufficient and therefore
टू और मोर सेल्स आर यूज टुगेदर। ठीक है, अगर एक डिवाइस के लिए हमें चाहिए और अमाउंट ऑफ करंट नहीं मिल रहा है तो हम तीन चार मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल यूज़ करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेल को यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाती है, बैटरी। द द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ कॉम्बिनेशन इज शोज डन। ठीक है, अगर हमें करंट यूज़ करना है तो हम बैटरी को ऐसे लगा रहे हैं तो ऐसे ही इसके पीछे वाला भी ऐसे ही हम लगाएंगे। ठीक है, और थर्ड वन भी ऐसे लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं फैक्ट फाइल में, द बल्ब वी यूज़ एट होम आर हाई वोल्टेज 220 वोल्ट बल्ब। ठीक है, अगर हम बल्ब घर में यूज़ करते हैं तो वो 220 वॉट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। Bulb is an electrical component used for lighting. Commonly used bulb are based on the use of filament. ठीक है, ये जो फिलमेंट लगा होता है जिससे ये रोशनी दिखती है हमको, ये इसी की होते हैं बल्ब। ठीक है, द टॉर्च बल्ब्स वर्क एट लो वोल्टेज। ठीक है, जो टॉर्च में बल्ब होता है वो लो वोल्टेज में चलने वाले होते हैं, 1.5 या 6 वोल्ट्स के होते हैं, जो हमारी बैटरी सेल से वर्क करने लगता है। टू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन ऑफ अ बल्ब परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कैसे बल्ब परफॉर्म करता है अपनी एक्टिविटी। ठीक है, हम सेकेंड एक्टिविटी से समझ सकते हैं। एक्टिविटी 2 क्या कह रही है, टू स्टडी द डिज़ाइन और अ स्ट्रक्चर ऑफ टॉर्च बल्ब। मटेरियल रिक्वायर्ड अ टॉर्च बल्ब। प्रोसीडर क्या है, टू टेक आउट द बल्ब फ्रॉम अ टॉर्च यू मे अदरवाइज परचेज ऑन one from any electrical shop. Observe the bulb from the outside and also from the inside with a magnifying glass. List the various part of you could see. जो देख रहे हैं वो हमें ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या है, द टॉर्च बल्ब कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। मेटल केसिंग हैविंग द ग्रूव्स इन द लोअर पार्ट। ग्रूव्स होते हैं जो लोअर पार्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अ स्मॉल स्पाइरल ऑफ अ थिन वायर। ठीक है, इसकी अच्छा ये है मेटल वायर का कुछ क्या होता है, आपको स्पाइरल दिख जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। टू स्लाइटली थिकर वायर। ठीक है, दो स्लाइटली थिकर वायर दिखेंगे। दिस वायर सपोर्ट द फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट को ये सपोर्ट करते हैं। वन ऑफ द टू वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केसिंग। ठीक है, दो वायर उससे मेटल केसिंग से अटैच होते हैं। द मेटल स्टेप्स एंड द केसिंग आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। ऐसा उनको मेटल टिप से टच किया जाता है कि वो एक दूसरे को टच ना करें। दिस इज डन बाय यूजिंग एन इंसुलेटर बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटर लगा के, ठीक है, इनको अलग किया जाता है। फिर हाउ टू कनेक्ट अ बल्ब टू एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में कैसे कनेक्ट करते हैं। हाउ अबाउट मेकिंग एंड यूजिंग होम मेड टॉर्च। ठीक है, लेट अस लर्न हाउ टू डू विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, एक एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कैसे बनाते हैं टॉर्च। आप ये रीड कर लीजिएगा एक्टिविटी 3। ठीक है, एक्टिविटी 3 आप खुद से रीड कीजिएगा कैसे बनाते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप खुद से देखिएगा और बनाइएगा ज़रूर से। ठीक है, ये सब तो आप कर ही सकते हैं, अच्छे से करिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 3, आप खुद से पढ़ रहे हैं। आगे हम आते हैं, हियर द एल्युमिनियम क्लिप इज़ यूज एज अ स्विच। इसमें एल्युमिनियम वो है क्लिप यूज़ की गई है एज अ स्विच की तरह। ठीक है, आप देखिएगा, यू कैन पुट इट योर बल्ब ऑन और ऑफ एनी टाइम जस्ट बाय कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग द फ्री एंड इन विद द क्लिप के साथ जोड़ के। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक स्विच से। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट एट योर होम। At our home, we use the electric switch to put you on or off the light, a fan, a computer, a TV, a music system, etc. In an electric circuit, a switch is sometimes refers to as a key. ठीक है, कभी कभी स्विच की जगह सर्किट में कीज दी जाती है। ठीक है, इसकी स्किल में करने के लिए चलिए टेस्ट योर स्किल करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डैश। तो ये आप फिल कर लीजिएगा। आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है, लेट अस स्टार्ट दिस इलेक्ट्रिक सर्किट।
To have the electrical device working, the electrical current should flow through it for as long as you desire to work. Normally, the source of electric current, the mains or the electric cell, is connected to the device through electric wire. An electric switch is also introduced in the connecting wire so that the device could be put on or off as desired. Thus, we need a device, a source of current, cell or mains, and a switch to be properly connected through the electric wire. The proper connections allows the electric current to flow through the device via connecting wires for as long as the device has to function. The arrangement of a device, a source of current, a switch and wire is an example of electric circuit. Next आते हैं. When two ends terminals of the switch are connected to switch the device on, it is called a closed device. The switch is in its disconnect state is called an open device. Like this, आपने पढ़ा होगा एक closed figure और a open figure, वैसे ही ये भी है. To present a circuit on a diagram, electric wires are shown by simple lines where a switch is presented as shows here like this. ये जो लाइन है ये वायर के लिए और ये जो डॉट्स हैं ये क्या है, ये ओपन का शो कर रहा है, ये स्विच है और ये क्लोज का मतलब क्लोज स्विच है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं ओपन स्विच और क्लोज स्विच का. अ सिंपल सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शंस ऑफ अ बल्ब इज शोज एबव. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं ओपन और क्लोज सर्किट, ये भी दिया है. A circuit with an open switch is called an open circuit, while a circuit with a closed switch is called a closed circuit. Closed circuit, open circuit. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. In every closed circuit, the electric current flow from the positive terminal of cells towards the negative terminal vice the others component of the circuit. ठीक है. क्या होगा, हमेशा ये पॉजिटिव की साइड से करंट फ्लो करेगा और वो सर्कुलेट होगा फिर मूव ऑन होके नेगेटिव में आएगा. ठीक है. ठीक. हमेशा ये याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव की तरफ से फ्लो करेगा. द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ अ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो मार्किंग ऑन द कनेक्टिंग वायर्स एज शोज इन फिगर. जैसे ये फिगर में दिया है ना कैसे फ्लो कर रहा है, वैसे ही हमारा करंट फ्लो करेगा. डायग्राम में हमेशा एरो ऐसे ही दिखाएंगे. ठीक है. फ्यूज बल्ब. समटाइम्स द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब मे गेट डिस्कनेक्ट और द बर्न और द ब्रोकन. द बल्ब इज इन दिस स्टेट इज कॉल्ड अ फ्यूज्ड बल्ब. अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो इवन वाइल द कनेक्टेड इन द सर्किट. ठीक है. सर्किट में कनेक्ट होने के बाद भी वो ग्लो नहीं करता. दिस इज बिकॉज द ब्रोकन फिलामेंट कॉज अ डिसकंटिन्यूएशंस इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. अब क्या होता है, जो बल्ब को ब्लो करना चाहिए था उसमें से करंट पास तो होता है लेकिन वो प्रॉपर्ली पास नहीं हो पाता. द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू द बल्ब. और करंट वहाँ बल्ब के थ्रू जहाँ से बल्ब का फिलामेंट टूटा है उसकी वजह से करंट फ्लो करना बंद हो जाता है. मोर ओवर एनी अदर कॉज टू डिसकंटिन्यू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट विल ऑल्सो पुट द बल्ब ऑफ. ठीक है. जब क्या हो डिसकंटिन्यू करंट का हो, फ्लो में नहीं आ रहा हो, तब भी क्या होता है, बल्ब को हम क्या समझते हैं, फ्यूज बल्ब. ठीक है.